Hello students, we'll continue with chapter 9, that is heredity and variation. In my last lecture I explained you Mendel's laws, that is Mendel monohybrid cross as well as Mendel dihybrid cross. Today we'll talk about the variations, and these variations का इम्पोर्टेंस क्या है. दिस वेरिएशंस आर असेंशियल फॉर द एवोल्यूशन. और ये भी हमने देखा कि वेरिएशंस जो हैं दे टेक्स प्लेस इन सेक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, एंड व्हेन दिस वेरिएशंस टेक्स प्लेस देयर इज अ स्लाइट चेंज इन द DNA. Now if these variations which occur in the organism, they are favored by nature, that means these variations are useful variations and they are favored by the nature. Because of that the organism survive in the environment, it reproduces and pass these variations to the progeny. Progeny means next generation. That means ये जो सेक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरिएशंस दिखती हैं, अगर ये वेरिएशंस यूजफुल हैं and because of these variations the organism it survive and it is fit for that environment, then these variations they are passed from one generation to next generation through reproduction. Actually this is a theory which is known as a theory of natural selection. Theory of natural selection for evolution. That means for the evolution the variations are essential, and who gave this theory of natural selection? It was Darwin who gave the theory of natural selection for the evolution. ये जो theory of natural selection है, this is also known as survival for the fittest. Now this Darwin, he gave this theory, but at the same time he was not knowing कि ये variation की mechanism क्या है. कि variations तो होती हैं in sexually reproducing organism, but what is the mechanism of variation? He was not knowing about it. Now let us see how the variations occur through an experiment, and that is examples of beetle, to understand the concept of variations and the natural selection. Suppose there are population of beetles, and these beetles they live on certain bushes which have green leaves, and the color of these beetles जो है वो red है. So एक population है beetle की जो कि bushes में रहती है, and these bushes have green leaves and beetle का color क्या है? red है. ये जो beetles हैं they are eaten by the crows. जो crow हैं वो beetles को खाते हैं as a food, and because this red beetle का color red है, the crows can easily see these red beetles and eat them. And ये जो beetles हैं which are red in color, they are sexually reproducing, and we know that sexually reproducing organism में slight variation is always seen. So beetles में थोड़ी थोड़ी variations हमेशा होती है. Now let us see what happened कि कुछ variation हुआ, और वो variations जो है वो color में हुआ. इंस्टेड ऑफ रेड बीटल एक बीटल ऐसा प्रोड्यूस हुआ जिसका कलर जो था वो ग्रीन था, एंड ये जो ग्रीन कलर है, दैट चेंज इन द ग्रीन कलर इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन द DNA. एज ए रिजल्ट ये जो ग्रीन बीटल है व्हेन इट रिप्रोड्यूस इट कीप ऑन गिविंग द ग्रीन बीटल्स. सो यहाँ क्या हो गया, थोड़े मेजॉरिटी ऑफ द बीटल्स दे वर रेड इन कलर, बट ग्रीन कलर का जो बीटल था व्हेन इट स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग इसकी जो प्रोजेनी थी वो भी बढ़ने लग गई. नाउ हियर द ग्रीन बीटल्स दे हैव अ एनवायरमेंटल एडवांटेज. क्या एडवांटेज है उनका? दिस क्रोज जो हैं दे कैन नॉट सी दिस ग्रीन बीटल्स. वाई? क्योंकि ग्रीन कलर का जो ग्रीन कलर है दैट गेट मर्ज विद द कलर ऑफ द लीव्स. एज ए रिजल्ट द क्रोज जो हैं from a distance they can see the red beetles, but they cannot see the green beetles. As a result जो crow हैं they
eat these red beetles. As a result, रेड बीटल की पॉपुलेशन जो है वो कम होती जा रही है एंड ग्रीन बीटल की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है. सो एक टाइम ऐसा आया कि जो रेड बीटल्स थे शुरू में, दे वर चेंज्ड इनटू द ग्रीन बीटल्स. सो इस एक्सपेरिमेंट में what we have seen that there is an environmental advantage to the green beetles. कौन सी environmental advantage थी? Because the crows जो हैं they were feeding on the beetles and these green beetles they were not visible to the crows. So this is a environmental advantage. Now let us see another example जहाँ पे again variations occur, but ये variations जो थी उसमें एक दूसरे कलर का बीटल आया, नॉट ग्रीन कलर. इनिशियली ऑल द बीटल्स वर रेड इन कलर, बट इंस्टेड ऑफ ग्रीन कलर एक बीटल का कलर जो है वो ब्लू हो गया. क्यों? क्योंकि इसकी जीन में कोई चेंज आया, देयर इज ए चेंज इन द डीएनए एंड इंस्टेड ऑफ रेड कलर अ ब्लू कलर बीटल इज फॉर्म्ड. एंड बिकॉज देयर वाज चेंज इन द डीएनए, ये जो ब्लू कलर था इट वाज पास टू द प्रोजेनी. नाउ the crows can see the red beetles also and the blue beetles also. That means यहाँ पे environmental advantage नहीं है कोई भी, क्योंकि crow जो हैं वो red beetle को भी देख सकते हैं दूर से और blue beetle को भी देख सकते हैं against the green background of the leaves. तो यहाँ पे populations of blue beetle ये कम रह गई क्योंकि कम blue beetles थे और red beetles की जो population थी वो बढ़ती गई. बट सडनली एक अनएक्सपेक्टेड चेंज आया. वो क्या चेंज आया? एक एलिफेंट आया एंड उसने अपना जो पाँव था वो उस बुश पे रख दिया जहाँ पे ये दोनों कलर के बीटल्स थे. सो इट वाज ऑल ऑफ द सडन अनएक्सपेक्टेडली वन एलिफेंट केम एंड दिस एलिफेंट स्टैम्प ऑन द bush on which both these beetles were living. And it was just a chance कि जब ये एलिफेंट ने पाँव रखा तो जितने भी रेड कलर के बीटल्स थे वो दे गेट किल्ड. सो इट वाज जस्ट ए चांस एंड इट वाज एन अनएक्सपेक्टेड चेंज कि जितने रेड कलर के बीटल्स थे दे गेट किल्ड एंड ओनली द ब्लू बीटल्स जो थे वो सर्वाइव कर गए. सो यहाँ पे क्या है? कोई एनवायरमेंटल एडवांटेज नहीं था. इट वाज जस्ट ए चांस एंड इट इज़ एन अनएक्सपेक्टेड चेंज विच अकर्ड. तो अभी वो जो रेड बीटल्स थे दे वर नॉट देयर एंड द होल पॉपुलेशन जो थी वो ब्लू कलर की हो गई एंड दिस ब्लू कलर दैट वाज पास टू द प्रोजेनी. सो इन दिस केस ऑल्सो द चेंज इन द पॉपुलेशन टेक्स प्लेस बट दैट वाज जस्ट अ चांस. सो इफ द परसेंटेज फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी जीन चेंजेस बाय चांस and then that is known as a genetic drift. So what is genetic drift? Genetic drift क्या है? Genetic drift is a sudden and the random change which occur in the progeny, which occur in the gene. Okay, and this genetic drift always takes place in small population. So यहाँ पे ये दिखाया कि पहले सारे जो थे वो रेड बीटल थे, थोड़ा सा डीएनए में चेंज आया तो वो रेड बीटल की जगह ब्लू बीटल हो गया. नाउ क्रोज कैन सी द ब्लू बीटल एज वेल एज द रेड बीटल. तो बिकॉज प्रोजेनी जो रेड बीटल की ज़्यादा थी सो मोस्ट ऑफ दिस बीटल दे वर रेड एंड दिस ब्लू बीटल्स दे वर लेस. बट यहाँ पे एक एलिफेंट आया एंड एलिफेंट ने अपना जब पाँव रखा तो जितने के जितने पूरे के पूरे जो रेड बीटल्स थे दे गॉट किल्ड और बाकी जो थे 3 बीटल जो ब्लू बीटल रह गए. Naturally this blue beetle they start reproducing sexually and this blue color was passed to the progeny. As a result पूरी की पूरी red beetles जो थे उनकी population जो थी वो blue color की होगी. और पहले में हमने देखा था कि red beetle की population that change into green. but दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में DNA में change आया but पहले केस में there was an advantage, एनवायरमेंटल एडवांटेज. और यहाँ पे जो है जेनेटिक ड्रिफ्ट में इट इज़ जस्ट अ चांस. नाउ लेट अस सी अ थर्ड कंडीशन इन विच देयर इज़ ए चेंज इन द बीटल्स. नाउ जिन बुशेस में बीटल रहते थे दोज बुशेस
में कोई डिजीज़ लग गई एंड बिकॉज ऑफ दैट डिजीज़ जो उनके लीव्स थे बुशेस के वो बहुत कम हो गए और बहुत छोटे हो गए. एज ए रिज़ल्ट बीटल्स के लिए एनफ फूड वॉज नॉट देयर बिकॉज बीटल्स जो थे दे वर फीडिंग ऑन द लीव्स ऑफ द बुशेस. और जब लीव्स छोटे हो गए और कम हो गए तो बीटल्स के लिए एनफ फूड नहीं था. सो इफ़ अगर हम फूड पूरा प्रॉपरली नहीं खाते तो हमारा वेट जो है वो हमेशा कम हो जाता है. सिमिलरली द सेम थिंग अकर्स हियर. जो बीटल का वेट था वो बहुत कम हो गया ऑल्दो देयर वॉज नो जेनेटिक चेंज. ये जीन्स में चेंज नहीं आया. ये चेंज किस में आया? द बीटल के लिए फूड ज़्यादा नहीं था. पहले जो एक्सपेरिमेंट थे उसमें हमने देखा कि देयर वाज अ चेंज इन द डीएनए, दैट मीन्स देयर वाज अ जेनेटिक चेंज. बट इस एग्जाम्पल में थर्ड सिचुएशन में देयर वाज नो जेनेटिक चेंज बट द वेट ऑफ द बीटल डिक्रीजेज बिकॉज एनफ फूड वाज नॉट अवेलेबल. नाउ थोड़े साल के बाद वो जो डिजीज़ थी वो ठीक हो गई. द डिजीज़ वॉज एलिमिनेटेड एंड अगेन लॉट ऑफ लीव्स वर देयर सो द फूड वॉज एनफ फॉर द बीटल्स. अगेन उनका वेट जो था वो इंक्रीज हो गया. नाउ दिस इज अगेन अ चेंज विच अकर बट दिस चेंज डज नॉट टेक प्लेस इन द जीन्स. सो इट इज़ नॉट ए जेनेटिक चेंज, इट इज़ नोन एज एन एक्वायर्ड ट्रेट और द एक्वायर्ड करेक्टर. सो अ करेक्टर which is acquired by an organism during the lifetime and the genes are not responsible for that trait, that those are known as the acquired traits. Like here देखो बीटल का साइज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है. डिजीज़ हुई, बीटल का साइज़ छोटा हो गया. अगेन थोड़े साल के बाद जब डिजीज़ चली गई तो बीटल का साइज़ जो है वो बड़ा हो गया. सो यहाँ इस एक्सपेरिमेंट में और पहले दो एक्सपेरिमेंट में फ़र्क है. दीज आर एक्वायर्ड ट्रेट जो कि ऑर्गेनिज्म की लाइफ में एक्वायर हुआ है एंड दिस चेंज हैज़ नॉट टेकन प्लेस इन द डीएनए. देयर इज़ नो जेनेटिक चेंज. पहले दोनों में जेनेटिक चेंज था बट इसमें जेनेटिक चेंज नहीं है. सो वी कैन से वेरिएशंस आर ऑफ टू टाइप. वन इज़ नोन एज द इनहेरिटेड वेरिएशंस जो कि वेरिएशन प्रोजेनी में जाती हैं. अदर इज़ नोन एज द नॉन इनहेरिटेड variations which are known as the acquired traits. So let us see what is the difference between the acquired traits and the inherited traits. As I told you, acquired traits are non-inheritable. ये progeny में नहीं जाती. Why? Because these traits develop in response to the environment. अगर वो चीज़ को हम निकाल दें तो these characters come again, like the size of the beetle वो दोबारा बढ़ गया when the leaves were there. But inherited traits जो हैं they are always passed to the progeny. Why? Because these inherited traits में there is a change in the DNA, there is a change in the gene. As a result ये जो changes हैं they are always passed to the progeny. In acquired traits change does occur but change occur in non-reproducing cells. Non-reproducive cells कौन से होते हैं? That is the somatic cell, not the germ cell. But अगर reproductive cells में change आता है तो that change is always passed to the progeny. इसका example लेते हैं हम कि acquired trait का, कि suppose few mice are there और surgical वो mice की जो tail है, mice वो rat जैसे होते हैं, छोटे से white color के होते हैं. And most of the जो biology के एक्सपेरिमेंट्स हैं वो माइस पे करे जाते हैं. ओके, नाउ ये माइस का टेल काट देते हैं सर्जिकली एंड देन दिस माइस ऑल्सो रिप्रोड्यूस सेक्शुअली. तो इनकी जो प्रोजनी होगी वो टेललेस प्रोजनी होगी कि टेल वाली प्रोजनी होगी? इट वॉज विद टेल. वाई? बिकॉज जब हम टेल काटते हैं तो देयर इज़ ए चेंज इन द नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स. उनकी रिप्रोडक्टिव सेल में कोई चेंज नहीं आता, उनकी ओवरीज में या टेस्टिस में कोई चेंज नहीं आता, बट टेल के जो सेल्स हैं विच आर नॉन रिप्रोडक्टिव सेल वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. सो इसमें जो नेक्स्ट प्रोजनी आएगी दे विल बी विद टेल. सो जितनी भी बार हम माइस की टेल को काटेंगे नेक्स्ट प्रोजनी में जो माइस होंगे वो टेल वाले ही होंगे. वाई? बिकॉज दिस इज़ अ एक्वायर्ड trait and there is a change in the non-reproductive cells. But अगर change reproductive cells में होता है, like बहुत से लोगों का कलर, आई का कलर है वो डिफरेंट होता है,
and it is always inherited. Why? Because there is a change in the reproductive cells. Like height है, लोगों की हाइट जो है वो अलग अलग होती है, एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द पेरेंट्स. अगर पेरेंट्स की हाइट ज़्यादा है तो उनकी जो प्रोजनी है, उनके जो बच्चे हैं, वो भी उनकी भी हाइट ज़्यादा होगी. बिकॉज दिस हाइट जो है इसकी जो इट इज़ अ इनहेरिटेड trait. So that is the difference between the acquired traits and inherited traits. And acquired traits are not passed to the progeny, whereas inherited traits are passed to the progeny. Okay, now I think I'll stop my lecture here. Next lecture में we'll talk about the speciation, that means how the new species are formed, and which is very important for the evolution. Till then, students, stay home, stay safe, take care of yourself. Thank you.